Welcome back to the class. We are in quadratic equations, that is chapter 4 of your syllabus, and in this video lesson I am going to discuss about how can we solve the quadratic equations by quadratic formula. Now what is quadratic formula? Quadratic formula is also known as Sridharacharya formula or Sridharacharya rule. So we all know that the quadratic equation is in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers provided that a should not equal to 0. So the quadratic formula or Sridharacharya rule says if alpha and beta are the two roots of the quadratic equation, then alpha and beta can be solved with the help of coefficients of the quadratic equation. So one of the root will be minus b plus under root b square minus 4ac whole upon 2a, and the another root, that is beta, is equal to minus b square minus 4ac upon 2a. The only difference between alpha and beta is this difference. ये प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर ये माइनस है. b square minus 4ac, the nature of roots depends on this particular term. This term is known as discriminant. It can be expressed with the help of capital D, और discriminant का क्या होगा? It is equal to b square minus 4ac. Now I hope you don't have any confusion in your mind what are b, what is a and what is c. ठीक है, because these are the coefficient. You can compare the given quadratic equation with the standard quadratic equation. Here you can see that coefficient of x square is a. So whatever is written at the place of a in the given equation, that is your a, और जो भी coefficient है x का that is b, और जो भी constant term यानी without x जो भी term है वो आपकी c होगी. तो ये आपको बिना किसी मेहनत के आप जैसे ही इक्वेशन देखेंगे आप a b c निकाल सकते हैं, और जैसे ही a b c आपके पास आ जाएंगे आपको सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ पर रखनी है और आपका सॉल्यूशन से ये इन दोनों के रूट्स आ जाएंगे. एन इम्पॉर्टेंट नोट, द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रियल ओनली इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही उस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. नाउ you can also briefing the roots of the quadratic equation. We know that b square minus 4ac is capital D, so minus b plus under root capital D upon 2a, and another root will be minus b minus root d upon 2a. Now let us understand the quadratic formula with the help of an example. Show that the equation 9x square plus 7x minus 2 is equal to 0 has real roots एंड सॉल्व इट. तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि दो क्वेश्चन यहाँ पर इनबिल्ट है. एक तो आपको ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल रूट्स हैं, और जब हम ये शो कर देंगे तो उसके बाद हमें फिर वो रूट्स वैल्यू की उन रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर these two equations to find the value of a, b and c. तो यहाँ पर ax स्क्वायर है और यहाँ पर 9x स्क्वायर है. तो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब है ax स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो a आपका क्या बन गया 9. तो यहाँ पर a इज योर 9. उसी तरीके से 7x इज इक्वल टू bx, तो b इज योर 7 एंड c इज इक्वल टू -2. सो सबसे पहले हमें शो करना है वेदर द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स और नॉट. इफ़ रियल रूट्स आर प्रेजेंट देन ओनली वी हैव टू फाइंड द रूट्स. ओके, तो इस केस के लिए हम क्या करें, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लें, और d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. यू हैव ऑल थ्री वैल्यूज. a आपके पास 9 है, b आपके पास 7 है एंड c आपके पास -2 है. तो आपने ये वैल्यूज यहाँ रख दी. एट द प्लेस ऑफ b आपने 7 रखा, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 9 रखेंगे और c के प्लेस पे -2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड दैट इट इज इक्वल टू 121 एंड you all know that it is greater than 0. So we can conclude that the given quadratic equation has real roots. अब हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी है, तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया
तो हम क्या निकाल लें, रूट डी निकाल लें, तो वो कितना आ जाएगा, रूट 121 एंड इट इज़ इक्वल टू 11. नाउ वी हैव द फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a. प्लेस द वैल्यूज हेयर, -7 प्लस 11 अपॉन 2 इंटू 9. You find that it is 2/9 and the another root beta is there is a change of sign only here. तो -7 minus 11 upon 18 और ये आपके पास आ जाएगा -1. So we can say that the roots of the quadratic equations are 2/9 and -1. Now next is using quadratic formula solve for x. अब जब आपके पास इक्वेशन के नंबर्स होते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट व्हाट इफ इक्वेशंस हैज़ कोफिशिएंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी, सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज प्रेजेंट. तो इसका भी सेम वही मेथड है, बट अब यहाँ पर क्योंकि ए और बी इस इक्वेशन में पहले से यूज़ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर और कैपिटल बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं, ताकि इक्वेशन के जो स्मॉल ए बी सी होते हैं वो और ये आपस में मिक्स ना हो, हम इनके बीच में कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके आपको क्या मालूम होगा कि ए आपका क्या है, ए बी है. ए इज योर ए बी. बी आपके पास क्या होगा, ए इज योर ए बी. बी क्या होगा, यहाँ से देखो, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज बी एंड सी इज माइनस बी सी. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी. इसका मतलब है हमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना होगा और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x की दोनों वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो. ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 क्यों आया, क्योंकि -4 यहाँ है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 4ab स्क्वायर सी, देखो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी सी है, तो क्या हो जाएगा 4ab स्क्वायर सी. अब आप इसको सॉल्व करो, ओपन करो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये क्या होगा, a स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर b की पावर 4 होगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, b स्क्वायर, तो आप लिखोगे a स्क्वायर c स्क्वायर और फिर आएगा -2ab, तो 2a स्क्वायर c प्लस, और ये आपका यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट था ये यहाँ पर मैंने लिख दिया. अब आप देखेंगे 4ab स्क्वायर c एंड 2ab स्क्वायर सी, दोनों को जब आप प्लस करेंगे आपके पास +2ab स्क्वायर सी आ जाएगा. अब जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी था तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा था. ठीक है, अब अगर यहाँ पर प्लस का आ गया, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. अब अगर किसी भी टाइम पर आपके पास ये वैल्यू माइनस आती है अंदर, तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल रूट होंगे. अब ये आपका डी आया, डी क्या आया, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, तो रूट डी क्या आ जाएगा, रूट डी विल बी बी स्क्वायर प्लस ए सी. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अल्फा आपका होता है, वैसे हम माइनस स्मॉल बी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने कैपिटल बी माना है तो उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूले में चेंज होगा. -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो जो भी माइनस तो यहाँ रहेगा, b की जो वैल्यू आई वो थी बी स्क्वायर माइनस ए सी, और डी की क्या वैल्यू आई, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा और ये माइनस इसको प्लस करेगा और ये ए सी होगा और ये भी ए सी है, तो ये 2ac बनेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, ये आ जाएगा c/b. वैसे ही जब हम दूसरा रूट निकालेंगे तो यहाँ पर होगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पर इसी इक्वेशन को आपको दोबारा लिखना है, बट यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस. ठीक है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, -2b स्क्वायर अपॉन 2ab, और इसके सॉल्यूशन पे आपको मिलेगा 2 से 2 जाएगा, b से b जाएगा 1, तो ये बचेगा -b/a. थस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी दैट इज abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस acx माइनस bc इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स, one is c/b and another is -b/a.
Okay, so this way you can solve the quadratic equation with the help of quadratic formula. It is very easy to use. If you don't have any factors in your mind and if you don't comfortable to solve the equation with the help of completing square method, but you are very strong in doing calculation, then you can use quadratic formula method to solve the roots and the factors of the quadratic equation. This is all about today's class. Thank you for watching.